A space station is in the process of being built to be used to study the Earth, stars, and man in space, and boiling a kettle of water. What do these three things have in common? They are all directly linked to the wonderful thing called science. These examples show that science is a powerful determinant of the conditions of the modern world, not just for today or the near future, but for centuries to come. Today's science is the foundation for tomorrow's progress. Progress and development of a country largely depends on the zeal and brilliance of youth. History is witness to contributions of young scientists who selflessly tired themselves in the service of science and overall good of humanity. The natural asset to science is youth, which can exhibit resolve, determination, and intellect to further the cause of overall good of humanity through science. Pakistan is blessed with enormous talents of youth, which has 55% young population. These young minds are responsible for the advancement and propagation of scientific knowledge in the country. Pakistan Science Foundation, for the last 34 years, is moving with a vision of creating culture of inventions and innovation. PSF has established Pakistan Museum of Natural History, Pakistan Scientific and Technological Information Center, science popularization through science caravans, science fairs, celebrating World Science Day, essay and poster competitions, and establishment of science clubs. PMNH is a project of Pakistan Science Foundation and Ministry of Science and Technology. The Pakistan Museum of Natural History has 4 divisions, namely Botanical Sciences, Earth Sciences, Zoological Sciences, and Public Services. The first 3 divisions are engaged in the collection, preservation, identification, and research activities pertaining to plants, fossils, and minerals and animals resources of Pakistan respectively. While it is important to articulate scientific knowledge to the scientists, researchers, academics, and general public, Pakistan Science Foundation has set up Pakistan Scientific and Technological Information Center. Beside capacity building of our researchers, scientists, and librarians, we also actually are working for other services, like we are in a phase to develop a consortium of libraries of Pakistan. PASTEC is a prime example of knowledge network which disseminates scientific and technological information to scientists, researchers, engineers, entrepreneurs, industry, and citizens of Pakistan. It's a wonderful place because it provides you with conducive environment where you can study peacefully. Besides this, there are a lot of facilities available which actually helps you in finding out resources. It is very helpful in our research purposes, and I wish that this institute will be progressed by leaps and bounds. PASTEC have purchased database of Scopus, which have millions of authentic journal articles from Science Direct. Our main aim is to actually make PASTEC an information hub
to cater the information needs of our users. Pakistan Science Foundation is actively engaged in establishing linkages with other national, regional, and international organizations to promote research and facilitate scientists, technologists, and technopreneurs of the country. Pakistan and China, the two brotherly neighboring countries, are collaborating with each other in scientific research through their scientific institutions such as National Natural Science Foundation of China, Chinese Academy of Sciences, and Beijing Museum of Natural History. PSF envisions to advance science and technology to accelerate socioeconomic development, create a culture of inventions and innovations, and above all, to motivate the youth, the very essence of this great country, who holds the key of ushering Pakistan into civilized and developed world to enter into spheres of science and take this country to greatest heights which our founder, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, wished for. अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। Yes, you are audible. ठीक है, प्लीज आप सब लोग जो है अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें ताकि हम फॉर्मली सेशन का आगाज करें। जी ठीक है मैडम। सबसे पहले हम तिलावत कुरान पाक से हम स्टार्ट करेंगे और तिलावत के लिए जो है वो मिस्टर परवेज को मैं कहूंगी कि वो तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। Dear valuable participants and researchers, Assalamu alaikum. This is Afshin Tariq, working as an assistant director STI and officer in charge at Pastik Subcenter, Karachi. As a coordinator, I am welcoming to all of you and our resource person, Dr. Mariam Abrar from Pastik National Center, Islamabad, for today's online training workshop on learned data analysis with SPSS. I am starting with the introduction of the Pakistan Scientific and Technological Information Center, PASTIC, functioning as a subsidiary organization of Pakistan Science Foundation under the Ministry of Science and Technology. PASTIC is the premier organization in the field of S&T information and is serving thousands of researchers and other professionals through its specialized information services. Pastik National Center, having its headquarters in the premises of Quaid-e-Azam University Campus, Islamabad, with a strong network of 6 sub-centers across Pakistan, located in Karachi, Lahore, Faisalabad, Peshawar, Muzaffarabad, and Quetta. Presently, Pastik provides a broad spectrum of services such as Pastik supplies, full-text research papers, S&T documents, bibliographic information services, patent information services, and so many others. Pastik published Pakistan Journal of Computer and Information System, Pakistan Science Aspect, Scientific Periodicals of Pakistan, Union Catalog with the name of PakCat.
PASTIC developed 24 new online national indigenous S&T databases such as Scientist Directory, R&D projects, COVID S&T information portal, SARC SME information portal, and so many others. PASTIC promoting university industry collaboration for research-based industrial development by organizing technology exhibitions and seminars. Due to COVID, PASTIC is organizing online workshops, training seminars like EndNote, data mining, SPSS, Mendeley, plagiarism, COHA, etc. for capacity building of young researchers, library professionals, and entrepreneurs. Recently, PASTIC signed MOU with Higher Education Commission and Pakistan Innovation and Testing Center to promote research culture. For further information, you can visit our website www.pastic.gov.pk. Now I would like to introduce the resource person of today's informative and productive session. Dr. Mariam Abrar has been working as an additional director STI for the last 11 years at PASTIC National Center. She is in charge of the publication section. As a resource person, she has conducted over 45 trainings on different research tools, including Mendeley, EndNote, Reference Management Tool, MS Excel, Turnitin, SPSS, etc. I would like to Dr. Mariam Abrar to conduct the session. Dr. Mariam, आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू अफशीन। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है मैडम। अच्छा, ओके, थैंक यू अफशीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome to the SPSS training workshop. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रेनिंग जो है हमारी ये बेसिक लेवल की, बिगिनर लेवल की है। तो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए, और आप सबको पता होगा स्टैटिस्टिक्स का जो टूल है SPSS, उसकी बहुत बेसिस उसमें रन होती है, ठीक है। तो इस छोटी सी एक शॉर्ट बुनियादी यही है कि आपको एक टूल से इंट्रोड्यूस करवाया जाए और स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम स्टार्ट करेंगे और इस टूल के बारे में जो है ना बेसिक कुछ कोर्सेज जो उसके एनालिसिस के जो टेस्ट हैं वो आपके सामने रन करके हम दिखाएंगे। हमारा कोर्स का मकसद जो है वो सिर्फ टूल है, ठीक है। ज़्यादा मतलब हम स्टैट पे या हम उसके फार्मूलाज और उस पे हम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका शेड्यूल बता दूं कि सबसे पहले वी विल हैव ए शॉर्ट प्रेजेंटेशन अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद हमारी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होगी। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ प्रेजेंटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इंट्रोडक्शन अफशीन ने करा दिया है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे फेजेस ऑफ रिसर्च साइकिल। कि आप में से मोस्टली आई होप के रिसर्चर ही हैं सब, और रिसर्च साइकिल जो है उसकी 5 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज कंसेप्शन,
जिसमें हम अपने रिसर्च का कॉन्सेप्ट जो है वो डिज़ाइन करते मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मैम। ये अनम्यूट हो गया अफशीन, ये खुद से, सॉरी मैंने अभी अनम्यूट किया, ये म्यूट हो गया था। चलिए कोई बात आई नहीं। डोंट नो। ठीक है, मुझे बताइएगा जब अगर इस तरह दोबारा हुआ। ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है। फेजेस ऑफ रिसर्च साइकिल, अब आवाज आ रही है? जी जी मैडम आ रही है। हेलो Yes, ma'am. मैडम आ रही। जी यस मैम, जी आवाज आ रही है। ठीक है। जी आ रही है रिसर्च आप। साइकिल, ठीक है। फेजेस, फर्स्ट फेज है कॉन्सेप्शन, जिसमें हम रिसर्च स्टडी जो है अपनी उसका कॉन्सेप्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें हम पीयर्स जो अपने सेम उसी फील्ड के रिसर्चर्स होते हैं उनसे हम डिस्कशन करते हैं, हम थॉरो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, या अपने मेंटोर या अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पर कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करके एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। नंबर 2 फेज इलेबोरेशन की फेज है, उसमें उसी रिसर्च स्टडी जो हमारा रिसर्च स्टडी उसको हम इलेबोरेट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, फुल हमारा रिसर्च प्लान जो है उसके एंड पे जो है वो डेवलप होता है। उसमें जो है हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, उसमें हम अपने मेथड्स कि हमने कौन कौन से मेथड जो है वो सेलेक्ट करने होंगे, हमारा सैम्पल साइज क्या होगा, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और किस तरह शेड्यूल करेंगे अपनी रिसर्च को। नेक्स्ट फेज है एम्पेरिकल फेज, इसको हम डेटा फेज भी कह सकते हैं। इसमें हमारा पूरा जो डेटा है वो हमारा कंपाइल होता है, कलेक्ट होता है, और इसके एंड पे हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। और डेटा कैसे आता है? एक्सपेरिमेंटेशन से आता है, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, डिपेंड करते हैं हमारे फील्ड पे। हमारा अगर हम सोशल साइंसेज में हैं तो हम कोई सर्वे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, या फिर हम कोई ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी होगी, ठीक है, तो हम जो है उस बेस पे अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। फोर्थ फेज जिसके बारे में आज की ये ट्रेनिंग है वो है एनालिटिक फेज। इसमें हम थर्ड फेज से जो हमने डेटा लिया है, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे और इसके एंड पर हम उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे और अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करेंगे। फिफ्थ और लास्ट फेज है डिसेमिनेटिव फेज, जिसमें हम बकायदा जो अपना थीसिस या पेपर जो है उसका राइट अप करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और एक पब्लिश्ड थीसिस या पब्लिश्ड रिपोर्ट की फॉर्म में हमारी ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि एक हमारा क्वेश्चन होगा, रिसर्च प्रॉब्लम होगा, देन वी विल डू बैकग्राउंड रिसर्च, थॉरो लिटरेचर रिव्यू, देन वी विल फॉर्मुलेट एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, रिजल्ट्स और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और हाइपोथेसिस जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे, अगर फॉल्स है तो समटाइम्स अगर किसी एरर की वजह से है तो हम दोबारा जो है वो इस साइकिल को जो है वो सैंपल, अगर फॉर एग्जांपल सैंपल साइज की वजह से कोई इशू है या कोई और हमारे उसमें इशू है हमारे मेथडोलॉजी में, तो हम उसको दोबारा से इसी एनालिसिस को और इसी प्रोसीजर को रन करेंगे। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो इस टूल से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स के साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम डेटा। यू ऑल नो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दो इसके फेजेस हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम अपने डेटा को
ऑर्गेनाइज और समराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल की बेस पे जनरलाइजेशन जो है वो बना रहे होते हैं कि सैंपल में ये चीज़ें आ रही हैं तो हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें भी ये इस तरह का जो है ट्रेंड है। पॉपुलेशन जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द इंटायर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज डिजायर्ड, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन, जो भी हमारी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत मतलब नामुमकिन होता है कि हम इंटायर पॉपुलेशन जो है उसको स्टडी करें, तो इसलिए हम उसमें से एक सैंपल लेते हैं। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी इन सम प्रेस्क्राइब्ड मैनर। फिर हमारे पास वेरिएबल हैं, एनी कैरेक्टरिस्टिक हुज वैल्यू मे चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। कोई भी चीज़ चाहे वो कलर है, चाहे वो कोई मेजरमेंट है, हाइट है, वेट है, एनीथिंग जिसकी भी वैल्यू चेंज होती है तो वो हमारा वेरिएबल होगा। इसके अलावा डेटा क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑन अ सिंगल वेरिएबल और साइमल्टेनियसली ऑन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है, उसको हम डेटा कहते हैं। जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हमारा डेटा बनाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। डेटा तो या तो क्रिएट होता है या फिर बोरो होता है। अगर हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। डेटा कैसे क्रिएट किया जाता है? डेटा ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटेशन की बेसिस पे या सर्वे की बेसिस पे क्रिएट किया जाता है। और जब हम डेटा को बोरो करते हैं, हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम किसी का क्रिएटेड डेटा यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। उसका सोर्स जो है वो किसी कोई पब्लिश्ड बुक, आर्टिकल या रिपोर्ट हो सकती है। इसी तरह वेरिएबल्स जो हैं स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस में हम यूज करेंगे वो दो तरह के होते हैं मेनली। एक होते हैं क्वालिटेटिव और एक होते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन न्यूमेरिकल वेरिएबल, क्वालिटेटिव मीन क्वालिटी वेरिएबल, नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल। इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो है वो दो तरह के होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल यानी नेम्ड वेरिएबल, उनका सिर्फ नाम होता है, उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे हेयर कलर हो गया, हेयर कलर की डिफरेंट फॉर्म्स होगी, ग्रे, वाइट, ब्लॉन्ड। इस तरह जेंडर है, मेल, फीमेल, ठीक है, ये नॉमिनल वेरिएबल है। मैरिटल स्टेटस हो गया। ऑर्डिनल वेरिएबल जो है वो भी एक नेम्ड वेरिएबल होगा, उसका कोई नाम होगा, लेकिन उसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं डेटा की उनमें कोई ऑर्डर होगा। जैसे स्टडी लेवल है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, और उसके बाद आगे ग्रेजुएट लेवल। फिर कोर्स ग्रेडिंग है, जैसे ए, बी, सी, डी। तो साइज ऑफ क्लोथिंग है, जैसे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। तो ये ऑर्डिनरी, ऑर्डिनल से यानी ऑर्डर से निकला है। फिर क्वांटिटेटिव जो न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस जो है वेरिएबल जो है या डिस्क्रीट वेरिएबल, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को जो एसपीएसएस उसको स्केल वेरिएबल कहता है। उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो स्केल। एसपीएसएस में वेरिएबल्स जो हैं वो सिर्फ तीन तरह के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल वेरिएबल्स। जबकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कंटिन्यूअस जो है जो इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हाइट होगी, वेट होगी, इसमें फिर इंटरवल और रेशो दो तरह के आ जाते हैं। इस तरह डिस्क्रीट है जो काउंटिंग काउंट्स हैं, जो नंबर हैं, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए, नंबर ऑफ कार्स, ये हमेशा होल नंबर्स में होंगे, इंटीजर्स में नहीं होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। सिमिलरली वेरिएबल्स जो हैं उनको हम नंबर पे क्लासिफाई करके अपनी जो है डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे यूनिवेरिएट, अगर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पॉपुलेशन की, फॉर एग्जांपल हम ग्रेड ऑफ स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो वो यूनिवेरिएट होगा हमारा डेटा। बाईवेरिएट हमारा डेटा जब होगा जब हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्रेड भी देख रहे हैं, ठीक है, और साथ उनका सब्जेक्ट भी देख रहे हैं, तो हमारी ये बाईवेरिएट डेटा है। मल्टीवेरिएट जब हमारे पास डेटा की मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल हम ग्रेड भी देख रहे हैं, हम उनका स्टेटस भी चेक कर रहे हैं, हम आईक्यू भी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट जो हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे इनको हम मल्टीवेरिएट कहेंगे, मोर देन टू। एक छोटा सा टास्क है कि आपके पास 10 जो है डिफरेंट किस्म के ये वेरिएबल्स हैं,
और इसको हमने मतलब इंटरेक्टिव उस तरह की हमारी तो नहीं है ट्रेनिंग, लेकिन ये है कि हम एक ये टास्क जो है ना वो कर सकते हैं कि इनकम है पहले नंबर पे, अडल्ट इन योर सिटी, फिर एज है, फिर कलर है, फिर नंबर ऑफ टिकट्स है, एरिया कोड है, बर्थ वेट्स हैं, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ रेड लाइट है, हैप्पीनेस रेटिंग है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स है, ब्रीड ऑफ डॉग, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इनमें से कौन से वेरिएबल हैं जो कैटेगोरिकल हैं, यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो आप जरा इस पे सोचें और देखते हैं कि आपकी वैल्यूज और जो रियल वैल्यूज हैं उनमें कितना फर्क है। अच्छा, अब आप देखें तो नंबर 3 जो कलर है, ठीक है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल क्वालिटेटिव क्योंकि नॉन न्यूमेरिकल है। इसी तरह एरिया कोड जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। और इसी तरह हैप्पीनेस रेटिंग जो है, ठीक है, वो भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है। इसी तरह आप देखें तो ब्रीड ऑफ डॉग जो है वो भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है, और नॉमिनल है। बाकी जितने भी वेरिएबल हैं, चाहे इनकम है, एज है, ये सारे जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। कुछ इसमें से जो है वो कंटिन्यूस है और कुछ जो है वो डिस्क्रीट है। जो डिस्क्रीट है अगर आप देखें तो वो नंबर वाले हैं, ठीक है, सिर्फ 4 नंबर पे, और बाकी जितने भी हैं वो कंटिन्यूस है। इसी तरह वेरिएबल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, मेन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब भी हम टेस्ट जो रन करते हैं तो उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट दोनों को सेलेक्ट करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को नॉर्मली किया जाता है इंडिपेंडेंट फैक्टर के नाम से जो है। आप में से किसी का माइक जो है मेरा ख्याल है वो ऑन हो गया और नॉइज है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके बहुत सारे और भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे कंट्रोल, कोवेरिएट, स्टिमुलस, रिग्रेसर, प्रेडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी। अफशीन? जी मैडम मैंने कर दिया है। कर दिया, अच्छा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कंट्रोल्ड हो रहा होता है, नहीं इंडिपेंडेंट जिसको हम खुद मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से ज़रा अच्छी तरीके से चीज़ समझ में आ जाती है, तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन है कि डू टोमेटोज ग्रो फास्टेस्ट अंडर डिफरेंट लाइट टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कंट्रोल करेंगे वो टाइप ऑफ लाइट है, हम टाइप ऑफ लाइट को कंट्रोल करेंगे, और जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे, वो कंट्रोल्ड होगा, यानी वो इससे वो डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डाइट एंड ड्रिंक्स ऑन ब्लड शुगर लेवल, तो यहाँ पे डाइट टाइप जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, और जो ब्लड शुगर लेवल जो हम मेजरमेंट लेंगे वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह हाउ डज गैजेट यूज बिफोर बेड टाइम अफेक्ट स्लीप, अमाउंट ऑफ गैजेट यूज जो है, जो हमारा टाइम है, ठीक है, कितने टाइम, वो हम कंट्रोल करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हम फिर मेजर करेंगे नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप और क्वालिटी ऑफ स्लीप, ठीक है। इसी तरह हाउ वेल डू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज टॉलरेट सॉल्ट वाटर, तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, ये हम खुद डिटरमिन करेंगे, ये हम खुद कंट्रोल करेंगे। और प्लांट ग्रोथ या प्लांट विल्टिंग जो है वो डिफरेंट पैरामीटर से हम जो है मेजर करेंगे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरह पेयर्ड वर्सेस अनपेयर्ड आपने बहुत सुना होगा कि जब हम कोई बी टू टेस्ट जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो उसकी अजम्पशंस में ये होता है कि जो ग्रुप्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। तो वो बेसिकली जो पेयर्ड और अनपेयर्ड की टर्म है वो भी इसी तरह से है कि पेयर्ड व्हेन इट अराइजेस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, कि आपने जो डेटा लिया है वो उन्हीं इंडिविजुअल का है, यानी दोनों 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन उन ग्रुप ए और बी में जो इंडिविजुअल्स थे या जो ऑब्जेक्ट्स थे वो सेम थे। फॉर एग्जांपल आपने बिफोर ट्रीटमेंट कोई मेजरमेंट ली, ठीक है, और आफ्टर ट्रीटमेंट आपने दोबारा उन्हीं प्लांट्स की मेजरमेंट ली, तो वो आपका पेयर्ड ग्रुप हो गया, ठीक है। अनपेयर्ड जो है व्हेन द सेट्स ऑफ डेटा अराइज फ्रॉम सेपरेट इंडिविजुअल्स, अनपेयर्ड में आपके अलग ग्रुप है। फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल ग्रुप है, दूसरा जो है ट्रीटेड ग्रुप है, ट्रीटमेंट ए आपने की या ट्रीटमेंट 2 की, तो वो जो ग्रुप्स हैं वो अनपेयर्ड हैं, यानी इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं।
इसी तरह यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने ये डिज़ाइन किया है कि टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली इसमें हम समराइज कर रहे होते हैं डेटा को, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह के बेसिकली हम मैयर जो है ना वो करते हैं। एक सेंट्रल टेंडेंसी, जो डेटा की जो है वो सेंटर की तरफ जो उसका ट्रेंड है उसको मैयर करते हैं, और एक मैयर ऑफ वेरिएबिलिटी जो फ्रॉम द सेंटर जो उसकी डेविएशन है उसको वो मैयर कर रहा होता है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास मीन आता है, जैसे एवरेज भी कहते हैं, मोड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मीडियन द मिडल वैल्यू। इस तरह मैयर ऑफ वेरिएबिलिटी जो है उसके अंदर हम रेंज देख रहे होते हैं, वेरिएंस देख रहे होते हैं, डिस्पर्जन, ट्रेंड डेविएशन देख रहे होते हैं। उसके बाद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, जिसमें हमने थ्योरी को प्रूव करना होता है या डिसअप्रूव करना होता है। हम वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशंस देख रहे होते हैं, रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट देख रहे होते हैं, और फिर हम ये देख रहे होते हैं कि हाइपोथेसिस जो है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें कोरिलेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, प्रेडिक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो जितने भी टेस्ट हैं तकरीबन वो इसमें आ जाते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सामने 3 जो है ना हमने फ्रीक्वेंसी के प्लॉट जो है वो डिस्प्ले किए हुए। दरमियान में अगर आप देखें तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मोड, मीडियन और मीन तीनों जो है वो इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये और ये सिमेट्रिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद राइट पे आप देखें तो राइट पे उसकी टेल नज़र आ रही है, ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मोड, मीड और मीडियन जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह लेफ्ट स्क्यूड में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर जो है वो टेल नज़र आ रही है, और मोड, मीडियन और मीन जो है तीनों जो है वो डिफरेंट है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है अगेन ये वही चीज़ें जो मैंने आपको डायग्राम में बताई हैं। फिर इन्फरेंशियल में एक कोरिलेशन है। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से अगर हम शुरू करें पॉजिटिव, जब हमने 2 वेरिएबल्स को प्लॉट किया, कंटिन्यूस वेरिएबल को, तो आप देखेंगे कि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे, उसका ट्रेंड जो है वो एक लाइन की तरह नज़र आ रहा है, लीनियर ऑलमोस्ट, ठीक है। और वो यूँ राइट की तरफ जो है वो यूँ इंक्रीज हो रहा है, तो ये इस ट्रेंड को पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की +1 से -1 जो है तक वेरी करती है। पॉजिटिव, अगर हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। नेगेटिव कोरिलेशन में आप देख रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड से वो नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही है, यानी अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम इसकी वैल्यू होती है वो -1 होती है, और अगर ये 0 हो मींस नो कोरिलेशन, तो आप सामने कोई ट्रेंड जो है ना ये पॉइंट्स फॉलो नहीं कर रहे और एक ये रैंडमली स्कैटर्ड हुए हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, we have 2 types of hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis. null hypothesis जो है उसको हम H0 से सिंबलाइज करते हैं, इस तरह alternate hypothesis को H1 या HA हम कहते हैं। null hypothesis जो है वो ये स्टेट कर रहा होता है कि null mean no, same, no relationship between 2 variables are same, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो हमेशा बाज़ात अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ये कह रहा होता है कि जो वेरिएबल्स हैं दे आर डिफरेंट, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स एंड दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम। नल हाइपोथेसिस जो है अगर वो ट्रू हो तो अल्टरनेट को हम रिजेक्ट करते हैं, और वाइस वर्सा, जब अल्टरनेट जो है वो ट्रू होगा तो फिर नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल में मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है हाइपोथेसिस की। H0 हमारे पास हमारी एक स्टडी है जिसमें हमारा H0 है नल हाइपोथेसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम देयर विल बी नो डिफरेंस इन एम्प्लॉय इंजरी, कि हमने एक एम्प्लॉय का सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, और हमने ये एज्यूम किया कि उसके लॉन्च करने के बाद भी जो पहले इंजरी का रेट था
बाद में भी वही रहा, सेम है, नो डिफरेंस। तो ये हमारा H0 है। लेकिन H1 जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या होगा, वो कहेगा कि it would be different as a result of employee safety program there is a difference in employee injury। इस तरह एंगर मैनेजमेंट थेरेपी हैज नो इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, ये हमारा एक नल हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेट इसका होगा एंगर मैनेजमेंट थेरेपी हैज अ इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। इसी तरह वेट हैज नो रिलेशनशिप विद डायबिटीज, अगर हम कहते हैं ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, नो रिलेशनशिप, नो डिफरेंस मींस नल। वेट हैज अ रिलेशनशिप विद डायबिटीज, तो ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। इस तरह प्लांट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइट कलर, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। और प्लांट ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय लाइट कलर, ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस की रिजेक्शन या उसकी एक्सेप्टेंस जो है उसके लिए हमारा क्राइटेरिया जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, जिसको हम पी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे थीसिस भी देखे होंगे, पेपर्स भी पढ़े होंगे, और में नॉर्मली आपने देखा होगा पी वैल्यू लिखा होता है और 0.05। ठीक है, तो पी वैल्यू जो है अगर लेस देन 0.01 है, और ये डिफरेंट जो है ना वो आपके फिर सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टडी है तो उसके लिए हम पी वैल्यू जो है वो बहुत कम रखते हैं, 0.01। नॉर्मली जो है ये 0.05 होती है। तो लेस देन 0.01 जो है मीन लेस देन 1% जो है उसका मतलब है कि वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट है वो आपके, और आप जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर ये 0.05 से 0.01 पे चली जाती है तो भी ये स्ट्रॉन्ग है, और अगर 0.1 से लेकर 0.05 है तो ये वीक है, और फिर अगर मोर देन 0.1 है तो वेरी वीक टू नल। तो इस पे आके हम जो है नल हाइपोथेसिस जो है हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक्सेप्ट ही होगा अगर वो वीक है या वेरी वीक है। इसी तरह इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप नीचे देख रहे होंगे, एक बार सा बना हुआ है, तो ये 0 से लेकर 0.05 ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, और H1 जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट करते हैं। और बाकी जो 0.5 से लेकर अब ये 1 तक देख रहे हैं, इस रीजन में हम नल हाइपोथेसिस जो है वो उसको रिजेक्ट नहीं करते बल्कि उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये लेवल जो पी लेवल है ये कौन डिटरमिन करता है, ये रिसर्चर खुद डिटरमिन करता है। इसको अल्फा से जो है हम सिंबलाइज करते हैं, और ये सैंपल साइज पे और नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट स्टडी उसकी सेंसिटिविटी जो है उस पर डिपेंड करता है। कॉमन लेवल जो है वो 0.05, 0.01 और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेस में 0.001 भी होते हैं। इंडिकेट्स probability that the researcher made an error in rejecting the null hypothesis। ठीक है, ये हमें ये बता रहा होता है कि हम कितने % श्योर हैं। अगर 5 है, 0.05 है, तो इसका मतलब है कि हम 99.5% श्योर हैं कि ये बाय चांस नहीं हुआ ऐसा। एक टिप है पी वैल्यू के लिए कि इफ पी इज लो द नल मस्ट गो, कि अगर पी जो है, क्योंकि ये मज़ा याद करना कि हम पी वैल्यू इतनी है तो फिर हमने नल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो उसके लिए बहुत एक इजी सी वो आपके ये टिप है कि इफ पी इज लो द नल मस्ट गो, कि जब पी वैल्यू लो होगी, लो मीन्स के जो उसका क्राइटेरिया है अगर आपने 0.05 है उससे लो है तो नल मस्ट गो मीन नल मस्ट बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो हमने रिसर्च क्वेश्चन जो अपना अल्टरनेट क्वेश्चन है उसको हमने एक्सेप्ट करना है। इसी तरह टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स जो हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू आ जाए लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर दें अगर, तो वो टाइप 1 एरर जो है ना वो उसकी वजह से होता है। फॉल्स पॉजिटिव जो है वो हमारे उसको हम कहते हैं हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं। और इसी तरह टाइप 2 एरर होता है जब नल हाइपोथेसिस जो है फॉल्स होता है, उसको रिजेक्ट होना होता है, लेकिन हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं, तो टाइप 2 एरर आता है। टाइप 1 एरर जो है वो चांस की वजह से आता है, और टाइप 2 एरर जो है वो समटाइम्स सैम्पलिंग एरर की वजह से होता है, सैंपल साइज जो है वो आपका अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो एक स्टैटिस्टिकल स्टडी जो है उसकी जो पूरी एक ये फेज जो है ना साइकिल फॉर्म में आपके सामने है
कि पहली बात तो ये कि हम इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू स्टडी ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो सो वी स्टडी ओनली अ सबसेट ऑफ देम, अ स्मॉल साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, स्मॉल पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, जिसको हम एक सैंपल कहते हैं। हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई एपिडेमियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी एज जो है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो 10 ईयर से अबव होंगे, तो 10 से नीचे वाले जो है हम सारे रिजेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हम कहते हैं 60 से अबव वाले हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी कि समराइज करेंगे डेटा को, अपना ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद हमारे पास समरी मेजर्स आएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे हम आएंगे, ठीक है। और हम जो है एक अपना मैथमेटिकल मॉडल जो है वो अडॉप्ट करेंगे, बनाएंगे, और फिर हम उसकी बेस पे अपने मॉडल को जो है वो मतलब पॉपुलेशन को पे प्रोजेक्ट करके उसको वैलिडेट करेंगे। इसको हम कहेंगे एक्सपेरिएंशियल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यानी कि हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये जो सैंपल है अगर इसमें ये फाइंडिंग्स आ रही हैं तो इट मीन्स के हम उसको जनरलाइज कर लेंगे पॉपुलेशन के लिए कि इसका मतलब है कि पॉपुलेशन में भी ऐसा ही है। इसी तरह सिलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, डिपेंड करती है कि आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। आपका एक ही वेरिएबल है, दो से ज़्यादा है, मल्टी वेरिएबल है। टाइप ऑफ वेरिएबल्स के वेरिएबल आपके कैसे हैं, क्वांटिटेटिव हैं या क्वालिटेटिव हैं, ठीक है, डिस्क्रीट हैं या कंटिन्यूस हैं। इस तरह टाइप ऑफ स्टडी आपकी क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपके इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, आपके डिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, और आप मेजर क्या करना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ये आपके लिए ये है डायग्राम जिसमें आपको बताया गया कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है। इस तरह के बेशुमार डायग्राम आपको नेट पर अवेलेबल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स पे फोकस कर रहे हैं, आपका प्राइमरी फोकस जो है वो वेरिएबल्स पे है, ग्रुप्स में नहीं है, ठीक है। आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो फिर आपको ये देखना होगा कि वेरिएबल्स जो है वो कौन से कैटेगोरिकल है, अगर नॉमिनल वेरिएबल हैं तो फिर आपने काई स्क्वायर रन करनी है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, कंटिन्यूस, तो फिर आपने कोरिलेशन और रिग्रेशन रन करनी है। अगर आप मीन्स को ग्रुप्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने ये देखना है कि सैंपल मीन को हम पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई पॉपुलेशन का मीन है अननोन है या है हाइपोथेटिकल है या हमने एक एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। या फिर ये कि हम उसी डिफरेंट सैंपल्स जो हैं उनके मीन को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर हमने ये देखना होगा कि हमारे जो ग्रुप्स हैं, हमारे जो सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है, पेयर्ड तो नहीं है, ठीक है। या फिर हमारे पेयर्ड सैंपल्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी वही ऑब्जेक्ट है, उन्हीं को दोबारा ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से उन्हीं ऑब्जेक्ट से, उन्हीं इंडिविजुअल से रीडिंग ली गई है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट करेंगे, और अगर हमारे इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टास्क पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पी वैल्यूज गिव स्ट्रॉन्गर एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। और अभी तक जो आपने प्रेजेंटेशन में चीज़ें सुन ली होंगी, उसके बाद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि कौन सी पी वैल्यू जो है वो नल हाइपोथेसिस, अगर वो हो तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्गर एविडेंस हमें नहीं देती, स्ट्रॉन्गर जस्टिफाइबल नहीं है। तो 0.002 अगर वैल्यू आ जाती है, नंबर 1 वैल्यू, ठीक है, अगर आपके पास होगी तो फिर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और आपका रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होगा। इसी तरह टास्क सी है, उसमें हम देखें 2 डिफरेंट स्टडीज ऑब्टेन 2 डिफरेंट पी वैल्यू। स्टडी ए जो है उसमें पी वैल्यू इज 0.3 वाइल स्टडी बी ऑब्टेन पी वैल्यू
of 0.003, which study obtained the strongest evidence against the null hypothesis. तो स्टडी ए में 0.3 है, स्टडी बी में 0.003 है. तो स्टडी बी जो है यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट है और नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है यानी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो ट्रू होगा. SPSS के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस. ये 1968 में रिलीज हुआ था बाय नाई, हल एंड बेंट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के. ये सोशल साइंसेस के PhD के स्टूडेंट्स थे और इन्होंने ये पैकेज, ये सोशल साइंसेस से बिलोंग करते थे तो इसलिए इन्होंने नाम SPSS रखा. लेटर ऑन इसका स्कोप चेंज हुआ और ये जो है वो सोशल साइंसेस से बियॉन्ड जो है वो इसका स्कोप जो है वो डिफाइन हो गया और अब इसका नाम चेंज करके जो है स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन जो है वो रख दिया. IBM ने इसको 2009 में परचेज कर लिया और अब ये हमें IBM के जो इसका ओनर है वो IBM है. स्टेप्स फॉर डेटा एनालिसिस, जो नॉर्मल स्टेप्स हैं. नंबर 1 जो हम अभी फॉलो भी करेंगे कि पहला स्टेप तो ये है कि SPSS में हमने डेटा जो है इंपोर्ट करना है. मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने डेटा जो है एक्सेल में या किसी और फॉर्मेट में जो है वो एंटर किया हुआ है. ठीक है, उसके बाद हम उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी क्वालिटी मेजर करेंगे. हम देखेंगे कोई आउटलायर तो नहीं है, क्योंकि आउटलायर्स जो है आपके एनालिसिस को जो है वो डैमेज करते हैं. ठीक है, पोटेंशियल कोई मिस्टेक्स, कोई डेटा एंट्री मिस्टेक्स तो नहीं है उसके अंदर. आप अपने डेटा को मॉडिफाई करते हैं, बाज़ औक़ात आप डेटा को जो है वो कोई कंटिन्यूस डेटा है, फॉर एग्जांपल एज का डेटा है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो आप उसके बाज़ औक़ात जो है ग्रुप्स बना लेते हैं. ठीक है, इसी तरह स्कोर की बेसिस पे आप ग्रेड्स में डिवाइड कर लें स्टूडेंट्स के, तो वो आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और SPSS में इसकी प्रोविज़न मौजूद है. इसी तरह आप डेटा को लेबल करते हैं और सॉर्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप एनालिसिस रन करते हैं और अपने रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, जो हम इसमें टॉपिक करेंगे वो इस तरह से है कि डेटा को हम ओपन करना और इंपोर्ट करना जो है वो देखेंगे, वेरिएबल्स को डिफाइन करना, डेटा को क्लीन करना, आउटलायर्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, मिसिंग वैल्यू एनालिसिस कैसे होती है, मॉडिफाई वेरिएबल्स, कंप्यूट वेरिएबल्स. हम जैसे हमारे पास हाइट और वेट का डेटा है, ठीक है, और हमने BI कैलकुलेट करना है, BMI सॉरी, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, तो हम किस तरह से इसमें कर सकते हैं. इस रन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, फिर इन्फरेंशियल एनालिसिस, इसमें हम ये 4 जो है ना ये टेस्ट रन करके देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे हमने रिपोर्ट करना है. ये कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं. इसमें लार्ड स्टैटिस्टिक्स की ये बहुत अच्छी एक वेबसाइट है. इसमें आप कुछ भी गूगल पे टाइप करें लार्ड, इसी पेज पे जाके, तो उस पर हर किस्म की जो है वो बड़ी अच्छी सी गाइडेंस आपके लिए जो है वो मौजूद है, मैनुअल्स मौजूद हैं. उसमें SPSS के लिए सारे स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, उन सारी हर टेस्ट की assumptions मौजूद हैं कि किस टेस्ट को आपने अगर रन करना है, सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये सारी assumptions हैं कि वो नॉर्मेलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, डेटा इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशंस और ये सारा कुछ. इसके अलावा भी ये 3 आपके लिए जो है ना वो मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स और उनके लिंक दिए हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन. 5-1 मिनट की हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर पे आएंगे.
कुछ पार्टिसिपेंट्स का सवाल है उसके हवाले से कि प्रेजेंटेशन जो है वो ईमेल कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, आपको सर्टिफिकेट के साथ जो है प्रेजेंटेशन ईमेल कर दी जाएगी विद इन 1 वीक। आप लोगों की जो भी सजेशंस हैं वो आप हमें ईमेल करें या चैट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आप लोगों के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसमें हम फुलफिल करवा सके, नई ट्रेनिंग्स इंट्रोड्यूस करा सके जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वर्कशॉप के एंड के बाद जो है आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और एक पोल का मैं ऑप्शन आप लोगों से शेयर करूंगी, उसको ज़रूर फिल करिएगा। वकास सफ़ीर साहब ने लिखा है कि मैम आपकी आवाज़ कट रही है। ये मेरा ख्याल है कोई नेटवर्क का इशू, मेरा ख्याल है उनकी तरफ का है। जी जी मैडम, नेटवर्क का इशू ही है, क्योंकि ये सिर्फ मगर आपकी आवाज़ हमें सही आ रही है बिल्कुल, उनकी तरफ शायद नेटवर्क का इशू। कुछ पार्टिसिपेंट्स के मैडम सवाल है कि 100 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि काफी फोन भी आ रहे हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के जो 100 लिमिट्स के बाद जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। जी, असल में हमारा ये मीटिंग का अकाउंट है, तो मीटिंग की लिमिट जो है वो 100 है। जो वेबिनार होता है उसमें आप 100 से प्लस जो है वो लोग ले सकते हैं। तो खैर हमारी ट्रेनिंग जो है वो तो वेबिनार टाइप ही है कि उसमें जी जी मतलब क्योंकि टाइम शॉर्ट है और ये सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि इसमें हम उस तरह का इंटरेक्टिव सेशन नहीं कर सकते, तो इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है। चलिए मैं दोबारा से शेयर करती हूँ स्क्रीन अपनी। ठीक है, SPSS की ये स्क्रीन आपके सामने है और आई होप कि इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये SPSS का कौन सा पैकेज है। ये 28 वर्जन है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास लाइसेंस्ड वर्जन नहीं है क्योंकि IBM की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया। ये 30 डेज का ट्रायल वर्जन है, क्योंकि वैसे तो पायरेटेड आपको पता है अवेलेबल होते हैं, इधर उधर से मिल ही जाते हैं। हमारे पास भी शायद 21 वर्जन है अवेलेबल, लेकिन मैंने इसलिए ये किया क्योंकि ये रीसेंट वन है। ठीक है, और आप भी IBM की गूगल में आप टाइप करें IBM की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पर आप जो है ना वो, बल्कि मैं आपको कि यहाँ पे आप टाइप करें IBM SPSS। ठीक है, ये IBM SPSS सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें ट्राई SPSS स्टैटिस्टिक्स, इस पे क्लिक करेंगे और फिर ट्रायल वर्जन जो है आप इसका फॉर्म फिल करेंगे और ट्रायल वर्जन जो है आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे कि इसका इंटरफेस जब ये ओपन होगा और ये ऐसे सामने आपके पास, तो ये बिल्कुल एक्सेल की तरह एक स्प्रेडशीट है। इट्स जस्ट लाइक एक्सेल, अगर आपने एक्सेल को यूज किया हो, कॉलम्स, ठीक है, एंड रोज, बट हियर कॉलम्स मीन योर वेरिएबल्स, दे आर ऑलरेडी लेबल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, अब आपको ये बता दूं कि ये जो व्यू है ये आपका डेटा व्यू है। ठीक है, आप नीचे लेफ्ट साइड पे नीचे देखें तो आपके पास यू हैव 2 ऑप्शंस, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। तो ये इस वक्त आपके सामने जो ओपन है ये डेटा व्यू है और इसके साथ जो है वेरिएबल व्यू। ठीक है, फाइल ओपन करने का तरीका बहुत आसान है। आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और डेटा पे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक न्यू ब्लैंक, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं फाइल पे और न्यू फाइल ओपन करते हैं, इसी तरह न्यू डेटा फाइल जो है आपने SPSS में ओपन करनी है और ये डेटा व्यू में आपने, आपके सामने ये स्प्रेडशीट होगी। वेरिएबल व्यू जो है उसमें आप अगर आप देखें तो हमारे कॉलम्स के नाम चेंज हो जाते हैं, नेम, टाइप, विड्थ। यहाँ पर हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने नया डेटा,
अब दो तरीके हैं, या तो अगर आपने अपना डेटा एक्सेल में अपना डेटा डाला हुआ है, ठीक है, तो वो डेटा आप इधर इंपोर्ट कर लें, या अदरवाइज जो है नई फाइल खोल के और उधर ही डेटा ऐड करें, ठीक है। तो दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने नया डेटा ऐड करना है तो सबसे पहले आपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं। तो नेम कॉलम में आपने अपने वेरिएबल का नाम जो है वो सजेस्ट करना है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक डमी डेटा जो है वो डाल रही हूँ, ठीक है। तो डमी डेटा में मेरे पास है सीरियल नंबर, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूंगी तो बाकी सारी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज हैं वो उसने पिक कर लेनी है। नंबर 2 पे मैं यहाँ डालूंगी ग्रेड, ठीक है। नंबर 3 पे मैं डालूंगी जेंडर, ठीक है। नंबर 4 पे मैं स्कोर, स्कूल और लेवल, ठीक है। सारा मेरा न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। विड्थ में जो आप कैरेक्टर्स की विड्थ जो है वो डिफाइन करते हैं। डेसिमल स्पेसेस में आप इसको, अगर आपका डेटा उसमें नहीं है, होल नंबर्स हैं, तो आप 0 डेसिमल स्पेसेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेबल में यहाँ आप अपने वेरिएबल का नाम जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज, यहाँ हम लिख देते हैं आईडीज, यहाँ पे ग्रेड, स्कूल, के स्कूल में नेम ऑफ स्कूल, ठीक है। लेवल में जो है आप अपना जैसे प्राइमरी और इस तरह करके वैल्यूज मिसिंग, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं मैयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब नेम को वो कर लेते हैं, लेबल अपना लगा लेते हैं अपने लिए डिस्क्रिप्शन के लिए, और उसके बाद आप मैयर यहाँ से अब देखेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर क्योंकि कंटिन्यूस नंबर है, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एसपीएसएस में 3 टाइप्स के वेरिएबल हैं, स्केल है, ऑर्डिनल और नॉमिनल। स्केल जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं इंटीजर्स में, ऑर्डिनल जो काउंट डेटा है जो ऑर्डर में है, और नॉमिनल वेरिएबल्स जो है वो जो नेम वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। तो सीरियल नंबर हमारा स्केल वेरिएबल होता है, ग्रेड हमारे जो है वो ऑर्डिनल वेरिएबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्डर में होते हैं। जेंडर हमारा नॉमिनल वेरिएबल है, स्कोर हमारा स्केल वेरिएबल है, स्कूल हमारा क्योंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल है, एक ही दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। इस तरह लेवल जो है क्योंकि उसमें ऑर्डर है तो ऑर्डिनल वेरिएबल है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ग्रेड यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो डेटा है उसमें 1 ग्रेड जो है उसका मतलब है कि ए, ठीक है, तो हम उसको ऐड करेंगे। 2 का मतलब है बी, ठीक है, और 3 का मतलब है सी, और इसी तरह 4 मीन्स डी, ठीक है। ऐड किया, ओके। इसी तरह जेंडर जो है उसमें 1 मीन्स फीमेल, एफ भी लिख सकते हैं। 2 मीन्स ओके। इस तरह स्कोर जो है क्योंकि हमारा स्केल वेरिएबल है इसके लिए हमें वैल्यूज की जरूरत नहीं है। स्कूल के लिए फॉर एग्जांपल 1 है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, ठीक है, और 2 है हमारे पास प्राइवेट स्कूल के लिए, और इस तरह लेवल में 1 हम देते हैं प्राइमरी को, 2
4 सेकेंडरी, ठीक है, 3 फॉर हायर, ठीक है। इसी तरह हम अपनी वैल्यूज इसको, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि जब आपने यहाँ से फिनिश कर लिया, आपने लेबल्स भी लगा दे, अपनी वैल्यूज भी दे दी, मेजर भी सिलेक्ट कर ली, तो आप डेटा व्यू में आकर अपना डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह ग्रेड में आप जेंडर में आपके पास 1 वैल्यू थी और 2 वैल्यू थी, ठीक है। अगर किसी ने 3 वैल्यू लिख दी तो फिर वो, जी हम लिख के भी देख लेते हैं क्या होता है। स्कोर, स्कोर है हमारे पास 23 34, स्कूल हमारे पास 2 तरह के थे, 1 2 3 नहीं था, 1 लेवल जो है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। अच्छा, आपके सामने ये ऊपर जो मेन्यू बार है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू लेबल्स, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये जो है आपके जो लेबल्स आपने लगाए हुए थे वो आपके सामने आ रहे हैं, वैल्यूज जो हैं वो हाइड हो गई हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको टर्न करके आप देख सकते हैं अपनी गलतियाँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही कैटेगरीज थी, यहाँ पे 3 कैटेगरी अगर आ गई या गलती से टाइप हो गई है तो इसको मुझे रीचेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये क्यों है ऐसे, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया। इसी तरह गवर्नमेंट प्राइवेट सिर्फ मेरे पास 1 और 2 कैटेगरीज थी, ठीक है। यहाँ पर अगर चेंज हो गया तो इट मीन्स कि मेरे डेटा में कोई मसला है। इसी तरह ग्रेड में मेरे पास 5th कैटेगरी नहीं है, ठीक है, और अगर आ गई है तो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय डेटा, ठीक है। इसको हम वापस रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका डेटा जो है वो कम्प्लीटली जो है वो इसमें के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है। ये तो था नया डेटा। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, सेव एज, ठीक है, और आप इसको माई डेटा के नाम से किसी भी फोल्डर में आप इसको सेव कर देंगे, और इसकी एक्सटेंशन जो है फाइल फॉर्मेट .sav है, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आप ओपन में जाके उस फाइल को ओपन कर सकेंगे। ये तो था आपका न्यू डेटा। अगर आपने किसी पुराने डेटा को ओपन करना है तो आप फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। उसमें आप डेटा को ओपन करेंगे, ठीक है। मेरे पास स्पेसेस का फोल्डर है, इसके ये टेस्ट की एक मेरे पास डेटा है, इसको मैं ओपन कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है। इसका वेरिएबल व्यू देखें तो मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं डेटा व्यू में, ठीक है। सबसे पहले तो हम इंस्पेक्ट करेंगे। अफशीन, कोई माइक मेरा ख्याल है ओपन रह गया, जी बंद कर दिया मैंने। सबसे पहले, जी सबसे पहले जो देखने वाली चीज थी, ठीक है, कि आपने वो उसको कोड को चेंज करके और ये देखना है कि आपने कोई एंट्री मिस्टेक तो नहीं की हुई, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो मिसिंग वैल्यू एनालिसिस है कि आपके डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज कितनी है, ठीक है। मिसिंग वैल्यू एनालिसिस के लिए जो है वो अगर आप डेटा में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज चेक कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रही हूँ एज इन ईयर्स, मैरिटल स्टेटस, एज इन ईयर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैरिटल स्टेटस को ईयर, इनकम, ठीक है। ये 4 कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली। स्टैटिस्टिक्स में जाके
ठीक है, आप देखें ये फर्स्ट टेबल है। अच्छा, अब मेरे सामने जो फाइल ओपन है ये आउटपुट फाइल है, ठीक है। तो डेटा फाइल जो है अब SPSS में अलग होती है, डेटा फाइल ये है, और जो जब रिजल्ट आया हमारा एनालिसिस का तो वो एक आउटपुट फाइल जनरेट हुई। इसको आप अलग से जो है वो इसकी एक्सटेंशन भी अलग होती है और उसको अलग से सेव किया जाता है। अगर आप देखें तो ये टेबल में आपके सामने कि वैलिड केसेस जो हैं वो टोटल कितने थे, 2208, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे एज के अंदर जो है वो 6 वैल्यूज जो है वो मिसिंग है, ठीक है। बाकी के अंदर मिसिंग कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने मिसिंग वैल्यू जो है वो देख सकते हैं। मिसिंग वैल्यू के बाद इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है डिसीजन, कि आपने डिसीजन क्या लेना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ मिसिंग वैल्यू, अगर आपकी मिसिंग वैल्यू 10% से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर आपकी 10% से कम है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल किसी एक वेरिएबल के अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यू 40% से ज़्यादा है, या तो बेहतर यही होगा कि उस वेरिएबल को डिलीट कर दें, ठीक है। अगर आप यानी उस कॉलम को ही डिलीट कर दें, ठीक है। अगर आपके पास जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ हैं मिसिंग, तो आप यूँ कर सकते हैं कि कोई एक नई कैटेगरी बना लें अदर के नाम से और उसके अंदर उस वैल्यूज़ को ले जाएं, ठीक है। या फिर ये है कि यूँ भी हो सकता है कि अगर बहुत कम वैल्यूज़ हैं, 10% से बहुत कम हैं, तो फिर आप वो रिकॉर्ड ही डिलीट कर दें अगर आपके सैम्पल साइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसके अलावा आप यूँ भी कर सकते हैं कि अगर वो कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है, तो आप उसको मीन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन से रिप्लेस करने के लिए SPSS के अंदर मेन्यूज़ में, ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में आप जाएंगे, ठीक है, और रिप्लेस मिसिंग वैल्यू, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। जो अपना वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी मिसिंग वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है न्यू वेरिएबल में, ठीक है। ये उसका नाम है, ठीक है। अच्छा, मेथड यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपने मीन से रिप्लेस करना है तो आप मीन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आप ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यू विल गो बैक टू योर डेटा एंड देन यू विल फाइंड दिस न्यू, देखिए एज 1 के नाम से एक नया वेरिएबल ऐड हो गया, ठीक है। तो उसमें आप देख रहे हैं, अगर हम दोबारा एनालाइज पे जाते हैं, 6 वैल्यूज हमने देखी थी मिसिंग, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज पे जाके, और दोबारा से हम जो हमने नया वेरिएबल जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, सॉरी, फ्रीक्वेंसीज में जाके तो जो नया वेरिएबल है एज वाला, ठीक है, उसको हमने सिलेक्ट करना है, फिर दोबारा से रन करनी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एज इन ईयर्स जो था उसमें 6 वैल्यू मिसिंग थी, और जब हमने मिसिंग वैल्यू एनालिसिस रन की और मीन से उसको रिप्लेस किया तो हमारे पास कोई भी वैल्यू अब मिसिंग नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये होता है कि बाज़ात कोई कंटिन्यूस वेरिएबल है उसको हमने कैटेगोरिकल में चेंज करना है, ठीक है। तो वो मैं आपके सामने बताती हूँ कि किस तरह हम करेंगे। हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ठीक है, विजुअल बिनिंग में जाएंगे। नॉर्मली एज हमारे पास होती है, एज को हमने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पर गए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से अब देखेंगे मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 84 है, ठीक है। तो बिन वेरिएबल एक नया वेरिएबल डिफाइन होगा, तो उसमें हम यहाँ लिखेंगे एज कैट, यानी हमने एज की कैटेगरीज बना दी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे मेक कट पॉइंट्स, उस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा मिनिमम है 18 उसको हम फर्स्ट कट पॉइंट उस पर बनाएंगे,
और फिर यहाँ से यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ हम नंबर ऑफ कट पॉइंट्स जो है वो डिटरमिन करेंगे या वेट। अगर फॉर एग्जांपल हम 10 इयर्स की वेट दे देते हैं तो तीसरा पॉइंट जो है 7 हमारे पास खुद आ जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ कट पॉइंट्स 10 हो तो उस केस में हमारी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो है कट पॉइंट्स या हमारी जो हमने ग्रुपिंग बनाई है, कैटेगरीज बनाई, ये इक्वल विड्थ इंटरवल वाली है। ठीक है, इसके बाद दो ऑप्शन इसके पास मजीद भी हैं, अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम इसको लेबलिंग भी करेंगे। और ठीक है, मेक लेबल्स, और उसके बाद हम ओके करेंगे। ठीक है, और फिर हम दोबारा अपने वेरिएबल्स को जाके देखेंगे। ठीक है, देखिए एज कैटेगरी का एक नया वेरिएबल जो है वो बन गया, और उसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम जाके देखें एज कैटेगरी का वेरिएबल है, और ये इसके अंदर जो है वो ये 11 उसने कैटेगरी। अगर इससे कम करना चाहते हैं आप तो अपनी जो विड्थ उसका साइज है। अफशीन प्लीज। कि ये तो था कि हमने किस तरह के कंटिन्यूस को कैटेगोरिकल वेरिएबल में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो ये है कि हमने अपने वेरिएबल को मॉडिफाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, कंप्यूट करना है। ठीक है, हमने उसे रिकैलकुलेट करना है। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइट और वेट का डेटा है और हम BMI जो है उसमें से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर हम टारगेट वेरिएबल BMI लेके और दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो डेटा है उसमें हमारे पास एज है। ठीक है, पहले मैं टारगेट वेरिएबल डिफाइन करूंगी कि मेरा न्यू वेरिएबल है एज न्यू। ठीक है, और वो किसके बराबर? इज इक्वल टू। ठीक है, जो मेरा एक एज का वेरिएबल है, एज इन ईयर्स। ठीक है, मैं उसको यहाँ पर ले आऊंगी और उसमें से माइनस करूंगी ईयर्स एट करंट। सॉरी, ये वाला वेरिएबल नहीं है, ईयर्स विद करंट एम्प्लॉय। ठीक है, कि ये एम्प्लॉय की एज है तो उसकी एक्चुअल एज कितनी है और ऑफिस में उसको कितनी मतलब साल हो गए सर्विस करते हुए। ठीक है, तो एज में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एज आएगी वो उसकी वो एज थी जिस वक्त उसने ऑफिस को ज्वाइन किया था। ठीक है, ये हम इसको ओके कर देंगे। फिर हम डेटा में जाएंगे और देखेंगे तो एज न्यू के नाम से एक नया वेरिएबल हमारे सामने है। ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस हैं डेटा के बारे में, ठीक है, ये आप देखें ट्रांसफॉर्म के अंदर आप ये कर सकते हैं, कंप्यूट भी कर सकते हैं, आप रिकोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं और आपने रिवर्स कोडिंग करनी है, ठीक है, 1 को 5 करना है, तो अब यहाँ से जाके इसकी रिकोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे जाएंगे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, यानी पुरानी वैल्यू ओल्ड वैल्यू क्या थी? 1 थी। ठीक है, और न्यू वैल्यू हमने क्या उसे देनी है, तो यहाँ पर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस तरह। फिर हमारे पास डेटा की बहुत सारी प्रोविजन है, हम केसेस को सॉर्ट भी कर सकते हैं, हम फाइल को स्प्लिट भी कर सकते हैं, हम अपने केसेस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट केसेस फॉर एग्जांपल आपने डेटा ले लिया लेकिन आपने अपना एक्सक्लूजन क्राइटेरिया चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल आप एज ग्रुप जो है कोई उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट केसेस में जाकर यहाँ से अपनी डेफिनेशन जो है उसके अंदर वो आप देंगे कि उन्हें इस वेरिएबल में ये वाले इस नंबर से ज़्यादा जो है इसको एक्सक्लूड करना है या इनको इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट जो है उनकी एजम्पशंस में ये होता है कि आपने नॉर्मेलिटी जो है आपके डेटा की, जब आप कंटिन्यूस वेरिएबल की बात कर रहे हैं
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आपने किस तरह इसमें परफॉर्म करना है कि एनालाइज में आपने जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना है, ठीक है, और आपने एक्सप्लोर के अंदर जाना है। एक्सप्लोर में जाके आपने एज इन ईयर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से आप आउटलाइन भी कर सकते हैं। ये नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, ठीक है, हिस्टोग्राम स्टेटमेंट, कंटिन्यू, ओके। ये हिस्टोग्राम आपके सामने देखिए, ये कैसी राइटली स्क्यूड आपकी वो शो हो रही है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी देखें, शेपिरो विल्क टेस्ट है और ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसका नल हाइपोथेसिस ये है कि डेटा इज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट है, इसका क्या मतलब है कि डेटा इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो ये टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी हमारा फेल हो गया और हिस्टोग्राम जो है वो आपको शो कर रहा है कि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस डेटा पे आप, अच्छा, डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सी, मतलब वो नहीं होना चाहिए कि 100% ये नॉर्मल हो, क्लोज उसकी होना चाहिए। तो स्क्यूनेस आप देखें और कर्टोसिस, स्क्यूनेस जो है वो ये बता रहा है 0.052, और कर्टोसिस जो है वो पीक, कितनी शार्प पीक है उसकी ये बता रहा होता है। ये कि हमारा ये भी ये इस लाइन के जितने करीब होंगे तो उतना जो है वो उतनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जितना ये पॉइंट्स दूर होंगे तो उसका मतलब है उतनी जो है वो आपका डेटा जो है वो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम इसी डेटा को यूज़ करके, ये हमारे पास टेस्ट डेटा है, इसको यूज़ करके हम देखते हैं कि काई स्क्वायर हमने कैसे इस पर रन करनी है, ठीक है। अगर आपके पास क्वालिटेटिव यानी क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनके लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उन, ठीक है, उनको, या ऑर्डिनल वेरिएबल, उनके लिए हम ये कर सकते हैं। एनालाइज में जाके हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके क्रॉस टैब क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें हम जाके देखेंगे कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है हमारी, ये जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, उसको हम कॉलम में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और रोज में हम देखेंगे कि एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन और मैरिटल स्टेटस, उसकी क्या रिलेशनशिप है। स्टैटिस्टिक्स में जाके हम काई स्क्वायर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू सेल्स में जाके आप रोज और कॉलम को कर सकते हैं या परसेंटेजेस, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले क्लस्टर बार चार्ट्स, ठीक है, हम ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास क्रॉस टैब एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये लेवल ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, और ये जॉब सेटिस्फेक्शन है। परसेंटेजेस भी हमने की हुई और 50 काउंट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो अच्छा, ये है हमारा काई स्क्वायर का टेबल, और इसमें आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, ऑल आर इक्वल, ऑल कैटेगरी जो है वो इक्वल्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सिग्निफिकेंट आ रहा है तो हमने इसे रिजेक्ट करना होगा। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। इसी तरह हम मैरिटल स्टेटस में काई स्क्वायर में, फिर हम अगर जॉब सेटिस्फेक्शन को मैरिटल स्टेटस के साथ देखते हैं तो अगर हमारे पास यहाँ पर आप देखें
तो नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं। इसका मतलब है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मेरिट। नहीं, मेरिटल स्टेटस इफेक्ट नहीं कर रहा जॉब सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। ये पी वैल्यू होगी जो आपने अपने उसमें देनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने उसमें देनी होगी। ये पियर्सन काई स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ से जो काई स्क्वायर की वैल्यू, ये अपने आपने रिजल्ट्स में जो है ना वो देनी होगी अपने थीसिस में या पेपर में, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं 12:30 बजे जो है वो हम इसको क्लोज करेंगे। मेरी कोई इंगेजमेंट है, कोई अर्जेंट काम है जिसकी वजह से मुझे 12:30 बजे वाइंड अप करना है। तो 1-2 टेस्ट और हैं वो हम देख लेते हैं। हम 1 सैंपल टी टेस्ट जो है वो इसके बाद रन करके देखेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि आपका डेटा जो है वो कैसा है। अगर आपने एक ऐसा सैंपल लिया हुआ है, ठीक है, जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि किसी पॉपुलेशन मीन से उसके मीन की वैल्यू किसी पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्योंकि आपका डेटा डिफरेंट होगा, इसमें हम ओपन करेंगे 1 सैंपल टी टेस्ट का डेटा, ठीक है। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है मेरे पास, और मैंने उसको एनालाइज करना है क्योंकि मैं मीन को कंपेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो 1 सैंपल टी टेस्ट मैंने यहाँ पर करना है। ये टेस्ट वेरिएबल मैंने ले लिया। यहाँ पर मैंने पॉपुलेशन मीन जो अपनी टेस्ट वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने किसी पॉपुलेशन से मीन लिया है, उसकी मीन वैल्यू जो थी, फॉर एग्जांपल मेरी पॉपुलेशन जो है वो कोई पेट हैं, ठीक है, मैंने उनकी पहले जो मेरे पास एवरेज थी लेट से वो 50 थी, ठीक है, मैंने उनको कोई डाइट दी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मैंने ये देखना है कि उनकी वैल्यू जो है, अब नई वैल्यू जो आई है वो डिफरेंट हुई है या उससे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो मैं ओके किया, ठीक है। 1 सैंपल आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ गई, टी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये 1 साइडेड, देखें ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, ठीक है। यानी बिफोर ट्रीटमेंट जो है डाइट देने के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो उनके वेट में सिग्निफिकेंट फर्क है, कि ये आपको बता रहा है। फिर उसके बाद अगर आपका डेटा इस तरह का है कि आपके पास पेयर्ड डेटा है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट का हमारे सामने डेटा ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप हैं, ठीक है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये 2 ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये पेयर्ड नहीं है, सॉरी अनपेयर्ड ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से, यानी जो जिन ऑब्जेक्ट से ये मेजरमेंट ली गई है वो दूसरे ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके लिए हमें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करना होगा। हम कंपेयर मीन्स में जाएंगे, ठीक है। पहले हमने 1 सैंपल किया था टी टेस्ट, अब हम इंडिपेंडेंट सैंपल करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट वेरिएबल जो है हमारे पास यही होगा, ग्रुप, ये जो ग्रुपिंग वेरिएबल है हमारा वो ग्रुप टाइप है, नॉमिनल वेरिएबल। यहाँ पे हम ग्रुप को अपने डिफाइन करेंगे, 1 और 2 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ऑप्शंस हमारी सेम है, ओके करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स आ गई हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और ये हमारे पास 2 साइडेड सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 0.13 सिग्निफिकेंस लेवल से बढ़ गया, तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इट मींस के ग्रुप्स के दरमियान जो है मीन जो है उनमें कोई एसोसिएशन नहीं है। अब हम एक पेयर्ड का
कर लेंगे डेटा फाइल में जाके पेयर्ड सैंपल, ठीक है। अच्छा, अब ये पेयर्ड सैंपल जो है जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो पेशेंट्स थे या जो भी ऑब्जेक्ट्स थे ह्यूमन थे या जो भी थे उनसे ये दोनों जो हैं वेरिएबल्स उन्हीं से मेजरमेंट जो है वो ली गई हैं। एक जो है कैल्शियम बिफोर मेडिसिन और ये कैल्शियम आफ्टर मेडिसिन, ठीक है। तो पेयर्ड में अगेन जो मेथड है वो वही है, लेकिन हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, पेयर्ड ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है डिफरेंस, ठीक है। तो हमने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है उसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि दोनों ग्रुप्स में बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट आफ्टर मेडिसिन जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसके बाद हम जाएंगे कोरिलेशन में, ठीक है। जैसे कि हमने आप इसमें देखेंगे एनालाइज के अंदर कोरिलेट, ठीक है। कोरिलेट इसमें जाके आप डिफरेंट किस्म की कोरिलेशंस हैं, बाइवेरिएट पे हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्टेड वेरिएबल है वो है प्राइस ऑफ प्राइमरी वेरिएबल, ठीक है। और दूसरा हमारे पास वेरिएबल है इनकम, हाउस होल्ड इनकम, ठीक है। इन दोनों का हम जैसे कोफिशिएंट जो है आपके सामने देख रहे हैं पियर्सन, अगर आपके पास स्केल वेरिएबल है कंटिन्यूस डेटा है तो आप ये यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है, जिसमें आपके पास वेरिएबल्स की जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट वो कम है, तो फिर आप स्पीयरमैन कोरिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है। हम आउटपुट के अंदर जाकर जी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो उसकी वैल्यू पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो डायगोनल स्पेस को आपने इग्नोर करना होता है और यहाँ पे 0.950, ठीक है। और आप देख रहे हैं ये हाईली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 0.9 इज क्लोज टू 1, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है, और सिग्निफिकेंस लेवल आप ये देख रहे हैं 0.0, ये कोरिलेशन है सिग्निफिकेंट एट द 0.01 लेवल, ठीक है। यानी 0.05 पे तो है ही है, 0.01 लेवल पे भी सिग्निफिकेंट है। तो ये प्राइस ऑफ प्राइमरी व्हीकल और हाउस होल्ड इनकम जो है वो वाकई इनकी हाउस होल्ड इनकम ज़्यादा है, तो उसमें प्राइस ऑफ प्राइमरी व्हीकल भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आने शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़रा स्टॉप करती हूँ और फिर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है जी। मेरे पास 6 मिनट्स हैं। My question is when we analyze the data, how will we save that data in Word or Excel? अच्छा, यानी आप ये का सवाल ये कि SPSS में हम एनालाइज करने के बाद अपने डेटा को कैसे, तो इसमें एक्सपोर्ट की ऑप्शन मौजूद हैं। मैं आपके सामने दोबारा से ना इसको शेयर करती हूँ, शेयर। छोटे मोटे सवाल आपके जो हैं उनको तो हम कर सकते हैं एंटरटेन। इसमें आप देखिए फाइल में जाके ना
ये जैसे मैंने आउटपुट की फाइल खोली हुई है, अब ज़रा हम जब एनालिसिस रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट का मेन फोल्डर होता है, इसी को हमने वर्ड में जाके वो करना होता है। वैसे तो अगर किसी भी ब्लॉग पे आप करें, ठीक है, और आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ एक्सपोर्ट की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, किसी एक टेबल को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरी फाइल को करना है तो आप फाइल मेन्यू पे जाके एक्सपोर्ट पे जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर आपके पास बेशुमार ऑप्शन मौजूद है, पावर पॉइंट पे भी, पीडीएफ पे भी, ठीक है, वर्ड पे आप लेके जा सकते हैं, इसको इमेज फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो और मजीद देख लेते हैं अफशीन के, और कोई ऐसा सवाल जो मैं कर सक, इजी रनिंग सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। मैडम जो पार्टिसिपेंट से हम ये बोलते हैं कि जिनका जो जो भी क्वेश्चन आंसर अगर इनके फुलफिल नहीं हो पाते इन दी मीन टाइम, तो वो आपको ईमेल कर दें। आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि उनकी जो भी क्वेरीज होंगी जी वो आपको ईमेल भी कर देंगे। टाइम लिमिट शॉर्ट है ना। Gmail, ठीक है। ये जब हमारी फिजिकल ट्रेनिंग जो पास्टिक में हम करवाते थे लैब में, तो ये भी 3 दिन की ट्रेनिंग होती थी, फुल डे। उसके एंड पर भी जो है ना हमारे पास वो जो पार्टिसिपेंट थे वो ये कह रहे होते थे कि मैडम ये सर टाइम जो है ना वो बहुत कम है, ये 3 दिन भी एसपीएसएस के लिए बहुत कम था। तो ये जो ज़रा 1.5 घंटे का टाइम वाकई बहुत कम है। लेकिन ये कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी सिर्फ एक बिगनर लेवल की थी, कि हमें सिर्फ ये आपको बताना था कि एक सॉफ्टवेयर है और इसकी क्या क्या जो है ना वो किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, किन किन चीज़ों को आपने जहन में रख के एनालिसिस जो है उसको रन करना है। अगर एक्सेल में डेटा हो तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे सामने ये एसपीएसएस ओपन है, आप फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट डेटा के अंदर जाके ये एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एक्सेल की फाइल ये जैसे ये सिलेक्ट की, ओपन की, ठीक है, और ये आपके सामने जो है ये ओके करेंगे और डेटा जो है एक्सेल का आपके सामने ओपन हो जाएगा। व्हाट इज बेस्ट टेस्ट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपने डोमेन में ये देखना चाह रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम उस एनालिसिस को रन करना है, आपको नहीं समझ आ रही, तो बेस्ट ये होगा कि आप लिटरेचर रिव्यू करें, उससे रिलेटेड जितनी भी पेपर्स होंगे आपके पास, थीसिस भी अवेलेबल होंगे, पेपर उनको स्टडी करें और उनमें आपके सामने होंगी वो एनालिसिस जो है वो ज़ाहिर है आपके डोमेन में जो होंगी वो स्पेसिफिक होंगी और वही बार बार रिपीट हो रही होंगी। तो इसके अलावा वैसे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये ईमेल मैंने आपको दे दिया है, ईमेल में। इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 मिनट है हमारे पास, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज अदरवाइज ईमेल कर दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है उसमें आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी डेटा की, ठीक है, और हर डोमेन का, अगर आप अकाउंट्स फाइनेंस में आपका डेटा डिफरेंट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है, अगर आप नेचुरल साइंसेस के आपका केमिस्ट्री में है तो आपका डेटा कुछ और तरह का होगा, आप सोल्यूशन की कंसंट्रेशंस होंगी, वेट होंगे, और अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो आपका लिक्विड स्केल का उस तरह का ऑर्डिनल डेटा होगा, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं, अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं तो आपका डेटा फिर और तरह का होगा। तो डिपेंडिंग कि आपका क्या रिसर्च है, फील्ड क्या है, ठीक है, और आपकी स्टडी का किस तरह की है, उस पर डिपेंड करके आपकी एनालिसिस और आपके टेस्ट जो है वो वेरी करेंगे, ठीक है। कोई जनरलाइज किस्म का जो है इसमें वो नहीं किया जा सकता कि कोरिलेशन जो है वो मैक्सिमम जो है वो टेस्ट में जो है ना कंटिन्यूस जहाँ पर होते हैं वेरिएबल वो यूज़ होती है। इसके अलावा ये कि हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हम कोई ऐसी जनरलाइज वो नहीं कर सकते कि एक
एक ही टेस्ट है कि वो सब हर एक जो डिसिप्लिन है उसके हिसाब से आपके वेरिएबल, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डेटा एनालिसिस में वो वेरिएबल है कि आप अपने वेरिएबल को जान लें कि आपके कितने वेरिएबल्स हैं और वो कैटेगोरिकल हैं, वो कंटिन्यूस हैं, वो डिस्क्रीट हैं, वो नॉमिनल हैं या ऑर्डिनल हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, अगर आप 1 घंटे की प्रेजेंटेशन सुनने के बाद अगर आपको इतनी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है अपने वेरिएबल के बारे में, तो मैं समझती हूँ कि बहुत इनकरेजिंग है कि अगर आप अपने वेरिएबल को जान लें तो आपकी डेटा एनालिसिस जो है वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, जो बेसिक टेस्ट है वो आपके सामने हमने कर लिए हैं। ठीक है, और मैं तो मजीद कुछ नहीं कहना चाहूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसंट्रेशन। अफशीन, थैंक यू मैडम। वाइंड अप करें अगेन। अब लास्टली जो है हम सेशन को जो है वो क्लोजिंग की तरफ करते हैं मैडम, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को जो है वो आज के डे की SPSS की जो बिगनर लेवल की इंफॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। नेक्स्ट सेशन जो है वो, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की डिमांड आ रही है कि नेक्स्ट सेशंस भी जो है वो ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए वो 100 लिमिट्स की वजह से। तो इंशाल्लाह उनके लिए भी हम नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ हम सेशन दोबारा अरेंज करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अल्लाह हाफिज। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और पार्टिसिपेंट्स आपके जो भी सवालात हैं या जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप मैडम का जो ईमेल एड्रेस है उस पे आप उनको अपनी जो SPSS के हवाले से जो भी सवालात हैं आप उनसे ईमेल में क्यूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो भी सजेशंस हैं वो भी आप हमें बताएं। आप में से कोई जो इतना एक्सपर्ट है जो ये चाहते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर में उनकी एक्सपर्टीज है, तो एज अ रिसोर्स पर्सन भी हम उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि आप जो है वो ट्रेनिंग दे सकें जो न्यू कमर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो जो ऐसे कोई पार्टिसिपेंट्स जो इंटरेस्टेड हो एज अ रिसोर्स पर्सन, तो वो भी आप हमें ईमेल करें और अपनी सजेशंस ईमेल करें जो आप जिसके ऊपर नेक्स्ट जो है वो अपनी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और आपके पास एक पोल का ऑप्शन आया होगा, ये एक छोटा सा सर्वे है, इसको आप फुलफिल करें ताकि जो है ये हमारे लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि आज की वर्कशॉप का जो फीडबैक है उससे हम काफी कुछ चीजें इम्प्रूव करना चाहते हैं। कोई अगर सवाल हो पार्टिसिपेंट्स का तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये जो आज लेक्चर था सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए, PPT भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो ये आप हमें ईमेल पर सेंड कर दीजिएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। आपको सर्टिफिकेट, आपको स्लाइड्स आपको आ जाएंगी, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो है ना, मैंने ये देखा है कि वो ट्रेनिंग से ज्यादा जो है वो सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। जो आपको लर्न करना है, आप जो चीज सीख रहे हैं वो चीज आप, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको प्रेजेंटेशन भी मिलेंगी, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, ठीक है, ताकि जो है वो थोड़ा टाइम इसमें लगता है हर चीज, क्योंकि मैं अपनी टेक्निकल टीम को ये चीजें फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो वो टेक्निकल टीम जो है वो एज सून एज पॉसिबल, और भी इंगेजमेंट्स है हमारी काम की, तो वो उसको करते हुए जो है वो सबको ईमेल कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये ईमेल में रिस्पांस मिल जाएगा। और कोई सवाल? थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये फिजिकल वेबिनार होते हैं ये डेटा एनालिसिस के? फिजिकल वेबिनार नहीं होते, फिजिकल वर्कशॉप्स होती हैं, क्योंकि कोविड की वजह से जो है वो हम लोग अभी वर्कशॉप्स ऑनलाइन करवा रहे हैं। फिजिकली इंशाल्लाह हमारा जो सेंटर है कराची सेंटर, यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग्स करवाते रहे हैं। 20 पार्टिसिपेंट्स की यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग होती रही है। तो इंशाल्लाह ये जो सिनेरियो है ये खत्म हो जाए तो हमारे सेंटर के अंदर जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे फिजिकल ट्रेनिंग, तो आप लोग उसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम आपको ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया जो हमारा पास्टिक का फेसबुक का पेज है उसको आप लाइक करें,
ताकि जो है वो आपको अपकमिंग जो भी इवेंट्स हैं वो आपको अपडेट हो सके आपसे। आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपनी जो भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो इस टॉपिक के ऊपर या कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं। हमारे पास वालेकुम सलाम जी फातिमा। मेरा ये सवाल था कि नेक्स्ट टाइम आप ये सेशन रखवाएं लेकिन ज़ूलॉजी फील्ड से रिलेटेड, ताकि हमें एनालाइज करने के लिए थोड़ा, मैम ने तो काफ़ी अच्छे समझाया और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि हमारी थोड़ा ज़ूलॉजी में इसकी एनालाइजेशन थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, आप जो है आपके पास अगर ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, 50 से अबव पार्टिसिपेंट्स हैं अगर आपकी ज़ूलॉजी की फील्ड की, तो फिर हम आपके लिए अलग से सेशन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। 50 क्या 100 से अबव हो जाएंगे स्टूडेंट, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम कैंडिडेट की जो भी हैं उनको अरेंज करना ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन काइंडली आप हमारे लिए थोड़ी स्टूडेंट के स्कॉलर्स के लिए थोड़ा मतलब जो है ना इजी करें हमें, ताकि हम आसानी से इस चीज़ को सीख सकें, और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है पैरामीटर हमारी रिसर्च में, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्पफुल रहेगा जो हमारे स्कॉलर्स हैं। इंशाल्लाह फातिमा, आप अपनी जो ये सजेशन जो है ये आप हमें ईमेल भी करें ताकि मैं आगे फॉरवर्ड करूं इसको, और इंशाल्लाह आपके लिए सेपरेट सेशन जो है हम आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मेरा एक सजेशन था कि आप ये टाइमिंग वगैरह इस तरह रखें कि सारे लोग इसको अटेंड कर सकें। मतलब आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। हेलो हेलो जी मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी आ रही है, आ रही है। मैम मेरा सजेशन था कि टाइम आप इस तरह रख ले कि सारे लोग इसको अटेंड कर सके। मतलब इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ना, तो उस तरह टाइमिंग में वो अटेंड नहीं कर सकते, तो अगर आप उसको इवनिंग टाइम में लेके आए तो फिर अच्छा होगा। देखिए कोशिश, देखिए अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है ना, रिसोर्स पर्सन की अवेलेबिलिटी के ऊपर, तो कोशिश हम करेंगे। हमारे जो सेशंस होते हैं ज्यादातर मॉर्निंग में होते हैं, बहुत कम सेशन जो है वो हम आफ्टरनून में रखते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑफिस टाइमिंग होती है उसी में हमें वो सब चीजें मैनेज करनी होती है। तो आप लोगों के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी रिक्वायरमेंट भी है, तो हर एक स्पेसिफिक किसी एक बंदे के लिए तो चीजें या रूल्स चेंज नहीं होते हैं ना, वो यूनिवर्सल रूल्स जो बन चुके होते हैं उसी के तहत सारी चीजें चल रही होती है। जी हाँ सही है। और कोशिश करें कि ये मतलब अगर सैटरडे या संडे को पॉसिबल है तो अगर उस डेज में करें तो फिर अच्छा होगा। ठीक है, आप अपनी सजेशंस जो है ये भी आप ईमेल कर दें या अपनी चैट बॉक्स में लिख दें, तो इंशाल्लाह हम वो भी कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आज के सेशन में जो है वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ने भी ज्वाइन किया है, और डिफरेंट कंट्रीज से वो भी ज्वाइन किया है, स्पेन से हैं, चाइना से हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे सेशन को जो है वो सक्सेसफुल बनाया। आप सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज।
लेक्चर 25